The most gracious, the most merciful, respected students, friend, farmer, your warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Respected students, today we'll discuss one assignment, epic theatre assignment. To what extent Brackett has able to use, to what extent Bertolt Brackett is able to use the epic theatre technique in his play. This is one assignment. And second, we are going to discuss scene 5. In scene 5, we'll see there is a plague in Florence. And what happens? A lot of people, they are here and they are saying to Galileo Galilei, you should leave this place. But Galileo Galilei, he's resolute and he's constant. He's not gonna leave. He's resolute enough and he says that I will stay over here because I have to compile my notes and I have to collect my research. So regarding research, I will have to stay. Andrea, Virginia and Andrea Certi, you should go from here. Take Andrea as well as Virginia from here. So Andrea Certi, she is saying again and again, she's saying that you should go with us because life is very important. But he says, I will defend because my enemies are very strong and I have to defend my proof. I have to collect some proof and I'll defend my scientific inquiry. So I will stay over here. So this is the situation over there in scene 5. You will see. The second thing we'll see that at last what will happen. Lot of people they even hate Galileo Galilei. Even there is no food for him and he's staying over there. There are some soldiers, they are pushing him that you should stay in home because you've got some plague like that and with you other people will be infected. Something like that position, you could say, situation is over here. But our hero, our protagonist Galileo Galilei is still resolute enough. So this is what we'll see. हम देखेंगे कि गैलीलियो गैलीली कितना रेजोल्यूट है, डिटर है और बड़ा डिटरमिन्ड है अपनी साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए. उसने कहा कि मेरा एनिमी जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और उसके मुकाबले में मुझे बहुत सारे प्रूफ जो हैं वो इकट्ठे करने हैं. इवन कि उसे एंड्रिया सर्टी और वर्जीनिया अपने फादर को कह रही है कि हमें इसको छोड़ देना चाहिए. मैंने कॉन्वेंट में देखा कि किसी की डेथ हो गई है और बहुत सारे लोग जो हैं उस वबा की वजह से उसकी डेथ हो रही है, तो आपको हमारे साथ चलना चाहिए. इवन कि वो डिस्कशन डिबेट करता है, एक लॉन्ग डिस्कोर्स करता है एंड्रिया सर्टी के साथ, वो भी लेट होती है और अल्टीमेटली हॉस्पिटल पहुंच जाती है. एंड्रिया जो है अपनी मदर के साथ उस छकड़े पर बैठ के जाता है, लेकिन वो रास्ते से अब गैलीलियो की मोहब्बत में दोबारा फिर वहाँ से वो छलांग लगाता है और वापस आता है. और फिर वो दोबारा अपनी मदर के साथ मिलने की कोशिश करता है, तो वो हॉस्पिटल होती है तो लोग उसे मिलने नहीं दे रहे कि कहीं वो भी इन्फेक्टेड ना हो जाए इस प्लेग की वजह से. तो ये सिचुएशन है, हम इसको देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. Undeterred even by the plague, Galileo carries on with his researches. यानी वो फियरलेस है किससे, प्लेग से, और अपनी रिसर्च को कैरी ऑन पोजीशन में रखा हुआ है. Line to line text, Galileo Galilei by Bertolt Brackett. Early morning, Galileo at the telescope bent over his notes. Enter Virginia with a traveling bag. ट्रैवलिंग बैग के साथ वर्जीनिया एंटर होती है और वो अपने एज यूजुअल अपने नोट्स जो हैं जो कंपाइल कर रहा है उसके ऊपर उसका सर है. गैलीलियो, वर्जीनिया, हैज समथिंग हैपेंड? गैलीलियो से पूछता कुछ हुआ बेटी, क्या हुआ? यानी आप वर्जीनिया से वो पूछता है व्हाट हैपेंड. तो वर्जीनिया खौफजदा है, टेरिफाइड है और वो दौड़ कर आई है, बैग, ट्रैवलिंग बैग उसके हाथ में है. वर्जीनिया आगे से बताती है द कॉन्वेंट शट. कॉन्वेंट स्कूल है, मोनेस्ट्री है, रिलीजियस मोनेस्ट्री है या इस तरह की कोई तंजीम है उनकी. तो द कॉन्वेंट शट, जैसे कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, बिल्कुल इसे कहता है कि वो कहती कॉन्वेंट जो अदारा है वो बंद हुआ. दिस सेंट अ स्ट्रेस हूं, और ये एक प्लेस का जिक्र हुआ है, ये लिख लें, आर्सिट्री. आर्सिट्री एक प्लेस है जो कि लिख लें आप, ये एक लोकेशन है फ्लोरेंस के अंदर, एक जगह है जो हिल साउथ ऑफ द फ्लोरेंस की तरफ, साउथ पार्ट की तरफ फ्लोरेंस के वाक़या है आर्सिट्री. तो वहाँ पे क्या हुआ उसकी पोजीशन बताती है. आर्सिट्री हैज हैड 5 केसेस ऑफ प्लेग, यानी वहाँ पे 5 केसेस प्लेग के सामने आए हैं. जैसे कोरोना वायरस के 10 केस सामने आए,
50 आए हैं, 1000 आए हैं, हजारों लोगों की डेथ होगी। तो ये इसी तरह वहां पे भी एक वबा है जो एक दूसरे को छूने से, सांस लेने से, पास आने से, करीब जाने से, उसके साथ सलाम लेने से इस तरह वो फैलती है। तो इस तरह लोग एक दूसरे से वो दौड़ रहे हैं, दूर जा रहे हैं। गैलीलियो कॉल्स सर्टी, गैलीलियो कहता है फौरन सर्टी को बुलाओ। कहाँ है सर्टी? वर्जीनिया आगे से कहती है मार्केट स्ट्रीट वॉज बैरिकेटेड ऑफ लास्ट नाइट, कहती शाम, यानी गैलीलियो अपने कामों में इतना बिजी है कि उसे ये नहीं पता कि क्या हो रहा है बाहर। जब आप किसी काम में बड़े खोए होते हैं, बिजी होते हैं, आपको नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है। आप किसी अदारे में भी बैठे हैं, अगर आप अपने कामों में रिसर्च कर रहे हैं तो यू इवन डोंट नो, you don't know what is going outside. So you are researching, you are having research, and you are all the day busy, even don't know what is happening outside the world. So the same thing is over there here. Scientists जो होते हैं वो बड़े busy होते हैं। वर्जीनिया मार्केट स्ट्रीट was barricaded. Barricaded होता है किसी को हर तरफ से बैरिकेड कर देना, उसका मुहासरा कर लेना, उसको बैरिकेड लगा देना, चेन कर देना। वर्जीनिया मार्केट स्ट्रीट वॉज बैरिकेटेड ऑफ लास्ट नाइट, लास्ट नाइट तो जो मार्केट स्ट्रीट है वो भी बैरिकेड कर दी थी। 2 people have died in the old town, पुराना टाउन है वहां पे 2 लोगों की डेथ हो गई है। They say and there are 3 more dying in hospital, और 3 मजीद मर रहे हैं हॉस्पिटल। ये देखिए इस तरह की वबा जो गैलीलियो का वक्त, आप देख लें कि उस वक्त भी ये बड़ी कॉमन थी। ज़रा ये डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिएगा, जो फाउंडर है इसी कंसेप्ट का, कॉपरनिकस की डेट ऑफ बर्थ है 1473 और 1543 रेनेसेंस फिगर है। बर्टोल्ट ब्रैकेट की जो लाइफ है वो है 10 फरवरी 1898 और 1956। गैलीलियो गैलीली की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1564 में पैदा हुआ है और 1642 में उसकी डेथ हुई है। गैलीलियो का जो वक्त है 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी की बात है। तो 16th सेंचुरी में, यानी 16th सेंचुरी में आप क्या देखते हैं कि 16th सेंचुरी के अंदर भी इस तरह की वबा मौजूद थी गैलीलियो गैलीली के वक्त। अब ये देख लें आपके सामने, गैलीलियो वर्जीनिया मार्केट स्ट्रीट वॉज बैरिकेटेड ऑफ लास्ट नाइट, 2 people have died in old towns they say and there are 3 more dying in hospital, यानी 3 और मर रहे हैं। गैलीलियो अब आगे से कहता है कि ये लोग जो है ना, ये जो कॉपरनिकस की 1473 बताया मैंने, 1543 में डेथ हुई कॉपरनिकस पर्शिया, ये प्रूशिया कोई इलाका है वहां पे पैदा हुआ था। 1473 में मैंने बताया पैदा हुआ और 1543 में इसकी डेथ हुई है। कॉपरनिकस 1543। Galileo as usual they hushed it all up till it was too late। कहता है कि जैसे एज यूजुअल, ये तो एक यूजुअल मैटर है, ये तब तक खामोश रहती है ये गवर्नमेंट, ये लोग, जब तक ज़्यादा देर ना हो जाए। यानी लोग जो हैं, हमारे जो लोग हैं, तब तक खामोश रहते हैं जब तक देर ना हो जाए। यानी दे आर नॉट टेकिंग एक्शन इन टाइम व्हाट इज हैपनिंग इन अ सिटी। ही इज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द सिटी। वो कहता है कि जल्दी जल्दी से एनडी असर्टी को बुलाओ और एनडी असर्टी आए जो हाउसमेड है और जल्दी से लेके निकल जाए बच्चों को। अब गैलीलियो आगे मिसेस सर्टी जो है वो आती है, जो उसकी हाउसमेड है। मिसेस सर्टी जो है वो एंटर होती है। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहां क्या कर रहे हो? मिसेस सर्टी आगे से कहती है वर्जीनिया तो फ्लैग, यानी वबा फैल चुकी है, लोग जो हैं वो क्या, वो मर रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है, उनकी डेथ हो रही है, लोग मर रहे हैं। गैलीलियो आगे से मिसेस सर्टी उससे बताती है गॉड लिव, गॉड अलाइव, आई पैक सिट डाउन। कहती है कि हमें जल्दी से क्या करना है, आई पैक सिट डाउन, यानी तुम यहाँ बैठो, सिट डाउन यहाँ बैठो, और जो हम जल्दी से वो आई पैक, मैं पैक करूंगी, मैं क्या करती हूँ, मैं पैक करूंगी और तुम यहाँ बैठो जल्दी जल्दी से, यानी वो उससे बता रही अलर्ट हो जाए। गैलीलियो आगे से कहता है पैक नथिंग, मैं तो कुछ भी पैक नहीं करूंगा। टेक वर्जीनिया एंड एंड्री, आई विल गेट माय नोट्स,
तुम ऐसा करो कि एंड्रिया और वर्जीनिया को दोनों को लो, बच्चों को, और यहाँ से निकल जाओ। मैं अपने नोट्स जो हैं वो कंपाइल करूंगा, इकट्ठे करूंगा। He hurries to his tables and hurriedly gather up papers. Mrs. Erty put Andrea's coat on him as he runs up, then collects some foods and linens, enters a grand footman। ये फुटमैन जो है ना, ग्रैंड ड्यूक ने एक, वो जो ड्यूक है उसने एक फुटमैन अपना मुलाजिम भेजा है कि भाई तुम जाओ और उसकी फैमिली को भी वहाँ से निकालो, क्योंकि बहुत बड़ी वबा आ गई है, लोग मर रहे हैं। गलेरियो की फैमिली को यहाँ से निकाल के ले जाओ। ही हरीज टू हिज टेबल, वो अपने टेबल की तरफ जल्दी से जाता है। एंड हरीडली गैदर्स अ पेपर, और पेपर को इकट्ठा करता है। मिसेस अर्टी पुट्स एंड्रियाज कोट ऑन हिम एज ही रन अप देन, और वो उसकी क्या करती है, मिसेस अर्टी क्या करती है, उसका एंड्रिया का कोट जो है वो लेती है। कलेक्ट सम फूड्स, और कुछ बेड वगैरह और जो बेड शीट्स वगैरह जो कपड़े वगैरह वो लेती है, और खाना वगैरह जो है वो इकट्ठा करती है। एंटर अ ग्रैंड ड्यूक फुटमैन, और ग्रैंड ड्यूक का जो फुटमैन है वो दाखिल होता है। आगे पेज नंबर 166 पे देखिएगा। फुटमैन, इन द व्यू ऑफ द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, His Highness has left the city of the Bologna, यानी कहता है कि इन द व्यू स्प्रेड ऑफ डिजीज के फैलने की वजह से द सिटी फॉर द ब्लॉगना, हिज हाइनेस हैज लेफ्ट द सिटी ऑफ द ब्लॉग, यानी जो हमारा ड्यूक है, जो इस इलाके का नवाब है, उसने को कहाँ चला गया, ब्लॉगना जो इलाका है उसमें चला गया, ब्लॉगना। However, he insisted that Mr. Glilly too should be offered a chance to get to safety, और उसने ये कहा है हमें ड्यूक ने कि आप लोगों को भी एक सेफ इलाके में आपको भी चांस दिया जाए कि आप भी वहां शिफ्ट हो जाएं। द कैरेज विल बी आउटसाइड, यानी कैरेज जो चकड़ा है या जो भी वो लेकर आया है, द कैरेज विल बी आउटसाइड योर डोर इन 2 minutes, 2 मिनट में तुम्हारे पास अभी कैरेज आ जाएगा। मिसेस अर्टी टू वर्जीनिया एंड एंड्रिया, गो आउटसाइड एट वंस, हियर टेक्स दिस, और मिसेस अर्टी कहती है वर्जीनिया और एंड्रिया से तुम जल्दी से बाहर जाओ और मैं भी वहां आती हूँ। हियर टेक दिस, ये सारा सामान पकड़ें और जाएं, उधर जाएं बाहर। एंड्रिया आगे कहता है व्हाट फॉर, इफ यू डोंट टेल मी व्हाई आई शैंट गो। आगे वो कहता है कि पहले मुझे बताओ कि क्यों छोड़ रहे हो आप इस इलाके को, व्हाई आई शैंट गो, मैं कभी भी नहीं, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मिसेस अर्टी आगे से बताती है इट इज द प्लेग माई बॉय, यहाँ पे वबा है और हमने यहां से निकलना है। वर्जीनिया आगे से क्या कहती है, विल वेट फॉर फादर, हम अपने फादर का, यानी हम फादर का वेट करेंगे जब तक वो अपना काम खत्म नहीं कर लेते, हम उन्हें साथ लेके जाएंगे। मुझे पता है अगर किताबों का इकट्ठा करने बैठ गए तो वो बहुत देर हो जाएगी। मिसेस अर्टी आप बाहर जो है वो आ गया है कैरेज वाला, वो भी बाहर से आवाजें दे रहा, आ जाओ भाई जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने और लोगों को भी लेना है, इस तरह वो आवाजें देगा। मिसेस अर्टी, मिस्टर ग्लेली आर यू रेडी, मिस्टर ग्लेली क्या तुम रेडी हो। ग्लेलियो आगे से कहता है रैपिंग द टेलीस्कोप इन द टेबल क्लॉथ, अपने टेबल का जो क्लॉथ है उसमें अपनी वो टेलीस्कोप जो है, वो लोग मर रहे हैं उसे अपने टेलीस्कोप की है, वो उसको इकट्ठा कर रहा है। पुट वर्जीनिया एंड एंड्रिया इन द कैरेज, आई वोंट बी अ मोमेंट, यानी तुम ऐसा करो कि एंड्रिया और वर्जीनिया को कैरेज के अंदर डालो, यानी उसमें बिठाओ और मैं भी तुम्हारे पीछे ही आ जाऊंगा। वर्जीनिया आगे से कहती है नो वी आर नॉट गोइंग विदाउट यू, वंस यू स्टार्ट पैकिंग अप योर बुक्स यू विल नेवर फिनिश। हाँ, हम अकेले नहीं जाएंगे और हम आपके साथ ही जाएंगे, और अगर आप अपनी बुक्स को इकट्ठा करने बैठ गए तो ये बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि वबा फैली है, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और सेफ मकामात की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से। आजकल का जो कॉन्टेक्स्ट आप इसमें समझ सकते हैं। मिसेस अर्टी, द कोच इज देयर, कोच जो है वो बाहर है, वो जो बग्गी है या वो जो लेकर आया है वो बाहर खड़ी है। ग्लेलियो, हैव सम, वो आगे से क्या कहता है, वर्जीनिया आगे से कहती है हैव सम सेंस वर्जीनिया, इफ यू डोंट टेक योर सीट्स द कोचमैन विल ड्राइव ऑफ, फ्लैग इज नॉट जोकिंग मैटर। कहता है वर्जीनिया तुम जाके अपनी सीट पर बैठो, कोच में बैठो, कोचमैन जो है वो एक जल्दी में है और वो उसे लेकर ले जाएगा चलाकर। फ्लैग इज नॉट जोकिंग मैटर, फ्लैग कोई जोक नहीं है, मजाक नहीं है। वर्जीनिया प्रोटेस्टिंग, वो प्रोटेस्ट करती है,
बार बार इसरार करती है। एज मिसेस सर्टी एंड एंड्रिया स्कोट हर आउट, हेल्प हिम विद हिज बुक्स, ही वोंट कम। वो बड़ा स्कॉट होता है, किसी को उभारना, किसी को कन्विंस करना। वो दोनों एसआरटी और मिसेस सर्टी और एंड्रिया दोनों उसको कहते हैं कि आओ चलें, हेल्प हिम विद हिज बुक्स और ही वोंट कम। हम ऐसा करते हैं कि हम इसकी हेल्प करते हैं। वर्जीनिया ये चाह रही है कि हम फादर की हेल्प करते हैं, अगर फादर को हम साथ ना ले गए तो यहाँ पे उसकी डेथ हो जाएगी, यहाँ पे तो वो वबा है तो वो नहीं आएंगे अगर किताबों में वो पढ़े रहे। मिसेस सर्टी फ्रॉम द मेन डोर, वो मेन डोर से आती है। मिस्टर ग्लेली द कोचमैन से ही कैंट वेट, कोचमैन ये कह रहा है कि वो वेट नहीं कर सकता। ग्लेलियो मिस्टर सर्टी आई डोंट थिंक आई शुड गो, मैं नहीं सोचता कि मुझे जाना चाहिए। इट इज ऑल सच अ मेस यू सी, तुम्हें पता है हमारे सामने इतना मेस पड़ा हुआ है, इतनी बुक्स बिखरी हुई हैं। 3 months worth of the notes which I might as well throw away, and if I can't spend another night or two on them anyway, this flag is all over the place. अगर मैं इन बुक्स को इकट्ठा नहीं करूंगा तो ये फ्लैग जो बाहर तुम्हें नजर आ रहा है, यानी ये इतना डाटा है जो मैंने 3 month में, ये 3 month लगेंगे इसको इकट्ठा करने में, अगर मैं इन नोट्स को इकट्ठा नहीं करूंगा या मैं इसको ठीक नहीं करूंगा तो ये जो फ्लैग तुम्हें बाहर नजर आ रहा है ये सारी दुनिया में फैल जाएगा, ये हर जगह फैल जाएगा। मिसेस सर्टी, मिस्टर ग्लेली, यू मस्ट कम नाउ, यू आर क्रेजी, तुम्हें अभी आना चाहिए, तुम पागल ना बनो, तुम पागल लगते हो। ग्लेलियो, यू हैव टू गो ऑफ विद वर्जीनिया एंड एंड्रिया, आई विल फॉलो, तुम्हें वर्जीनिया और एंड्रिया के साथ जाना चाहिए, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। मिसेस सर्टी, another hours and nobody will be able to get away, यानी कुछ घंटों के बाद या दूसरे आवर के बाद या थोड़ी देर बाद कोई शख्स भी यहाँ से नहीं निकल सकेगा। यहाँ पे बिल्कुल टोटली जो है वो वबा जो है वो फैल जाएगी और प्लेग की वजह से लोग बीमार हो जाएंगे, तो तुम कैसे निकलोगे यहाँ से। यू मस्ट कम, तुम्हें अभी आना चाहिए, तुम अभी आओ, जरूर आओ। लिसन, ही इज ड्राइविंग, देखो वो चला रहा है। आई विल हैव टू स्टॉप हिम, मुझे उसे रोकना है। एग्जिट ग्लेलियो वॉक्स अप एंड डाउन। मिसेस सर्टी री एंटर्स वेरी फेल्स विदाउट हर बंडल। अब क्या करती है मिसेस सर्टी, दोबारा वापस आती है कि तुम हमारे साथ आओ, लेकिन ग्लेलियो की क्या करता है, व्हाट आर यू स्टिल हियर फॉर, यूल मिस द चिल्ड्रंस कैरेज, तुम ये चिल्ड्रन का जो कैरेज है ये मिस करोगी, तुम ऐसा करो कि जाओ। यहाँ पे दिखाया गया कि मिसेस सर्टी जो उसकी हाउसमेड है वो ग्लेलियो से बड़ी मोहब्बत करती है, उसका बड़ा एक लगाव है। मिसेस सर्टी देव गॉन, वो जा चुकी हैं। वर्जीनिया हैड टू बी हेल्ड इन, द चिल्ड्रन विल गेट लुक्ड आफ्टर द Bologna, looked after in Bologna, but who is going to see you get your meal, यानी चिल्ड्रन जो है वो तो उनको तो ब्लॉगना में उनकी तो लुक आफ्टर उनको तो कोई करेगा, लेकिन बट हु इज गोइंग टू सी यू गेट योर मील, लेकिन तुम्हारे लिए मील कौन लाएगा या तुम्हें मील खाना कौन देगा। अब वो उसके लिए भी परेशान है क्योंकि वो उसकी हाउसमेड है। ग्लेलियो आगे से कहता है, यू आर क्रेजी, तुम पागल हो। स्टेइंग इन दिस सिटी इन ऑर्डर टू कुक, यानी तुम्हें इस सूरत हाल में, इस सिचुएशन में तुम्हें खाने की पड़ी है। पिकिंग अप हिज नोट्स, वो अपने नोट्स बताता है। डोंट थिंक आई एम अ कंप्लीट फूल, मुझे पागल ना समझो तुम। मिसेस सर्टी, आई कैंट अबैंडन दीज ऑब्जर्वेशन, मैं ये सारे नोट्स ऑब्जर्वेशन, ये सारे अपनी जो मैंने मफरूजात और अपनी ऑब्जर्वेशन जो मैंने इकट्ठी की हुई हैं, मैं आई हैव पावरफुल एनिमी, मेरा दुश्मन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। एंड आई मस्ट कलेक्ट प्रूफ फॉर सर्टन हाइपोथेसिस, और मैंने जो हाइपोथेसिस बनाई हैं, मुझे उन हाइपोथेसिस के लिए क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। मिसेस सर्टी आगे से कहती है, यू डोंट हैव टू जस्टिफाई योरसेल्फ, तुम्हें अपने आप को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली सेंसिबल, ये कोई सेंसिबल भी नहीं है। आगे, आउटसाइड ग्लेलियोज हाउस इन फ्लोरेंस, ग्लेलियो स्टेप आउट एंड लुक डाउन द स्ट्रीट, 2 nuns पास बाई। अब वो चले गए हैं और ग्लेलियो जो है ना बाहर देख रहा है और फ्लोरेंस की गलियों में, हाउस में, अपने घर से बाहर देख रहा है। ग्लेलियो स्टेप आउट होता है तो वो 2 nuns को स्ट्रीट में जाते हुए देखता है। 2 nuns जिन्होंने नन्स वाले कपड़े पहने हुए हैं, टोटली हिजाब पहना हुआ है, तो वो वहां से गुजर रही है। ग्लेलियो आगे से कहता है, ग्लेलियो एड्रेसेस देम, वो उनको एड्रेस करता है। कुड यू टेल मी सिस्टर वेयर आई कैन बाय सम मिल्क, आप सिस्टर मुझे बता सकती हैं कि मैं कहां से मिल्क खरीदूं। द मिल्क वोमन डिडंट कम दिस मॉर्निंग, आज जो दूध देने वाली औरत है वो नहीं आई।
एंड माई हाउस कीपर हैज लेफ्ट, और मेरी हाउस कीपर भी जो है वो भी मुझे छोड़ गई है, वो भी छोड़ के चली गई है। वन नन, एक नन आगे बढ़ती है। अब वो नन जो है उनके जहन में ये है कि यहाँ पे वबा है और इसको इसलिए छोड़कर चले गए हैं, ये बीमार है और ये अब तंदुरुस्त शख्स नहीं है, अगर कोई इसके पास जाएगा तो वो भी बीमार हो जाएगा। अब वो उसको किस पोजीशन में उसे ले लेंगे, वो कह रही है कि ये कोई बीमार आदमी है और इसकी वजह से बीमारी का खतरा है। The only shops opens are in the lower town. ये लोअर टाउन एक जगह है, वहां पे एक शॉप ओपन है। The other nuns, did you come from here? Galileo nods. तो वो आगे से कहती है, एक नन से पूछती है दूसरी नन, डिड यू कम फ्रॉम, नन होती है ऐसी रिलीजियस खातून, औरत जिसने अपने आप को मजहब के लिए वक्फ कर दिया, क्रिश्चियन के लिए, उसे नन कहते हैं। डिड यू कम फ्रॉम हेयर, क्या तुम यहां से आए हो? गैलीलियो नोड्स, वो अपना सर हिलाता है। दिस इज स्ट्रीट, दिस इज द स्ट्रीट, कहता है ये स्ट्रीट है, यहां से आया, वो बताता है। आगे द टू नन्स क्रॉस देमसेल्फ, वो एक दूसरे को क्रॉस करती है। मम्बल आ हेल मैरी एंड हरी अवेज अ मैन गोज बाय, तो उनके सामने से एक आदमी गुजरता है और वो बड़ा हेल मैरी, वो यानी वो मैरी मीन वो क्रिश्चियन सिंबल है, उसको आवाज देती है इस तरह। तो आगे वो कहता है गैलीलियो का एड्रेसेस हिम, वो उसको एड्रेस करता है। आर यू द बेकर्स दैट डिलीवर आवर ब्रेड्स टू अस, क्या तुम वो हो, यानी वबा है तो वहां पे एक आदमी ऐसे होते हैं, आदमी उन्होंने डेडिकेट किए होते हैं जो अपने आप को टोटली कवर किए होते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर जब कोरोना वायरस को ट्रीट करते हैं तो उन्होंने कैसे अपने ऊपर मुंह पे चढ़ाए हुए हैं, तो इसी तरह कुछ उन्होंने बंदे रखे हैं जो लोग जहां पे वबा ज्यादा है इलाके में उस फ्लोरेंस के, तो वहां पे घर घर जाके वो उनको दूध और उनको खाना और उनको वो चीजें वगैरह कुकिंग की देते हैं। गैलीलियो एड्रेस हिम, वो उसे बताता है, आर यू द बेकर, क्या तुम बेकर हो, दैट डिलीवर आवर ब्रेड टू अस, जो हमें ब्रेड डिलीवर करते हो। द मैन नोड्स, वो अपना सर हिलाता है। हैव यू सीन माई हाउस कीपर, क्या तुमने मेरे हाउस कीपर को देखा है? शी मस्ट हैव लेफ्ट लास्ट नाइट, वो उसने लास्ट नाइट यानी वो यहां से निकली है। शी हैजंट बीन राउंड ऑल डे, यानी वो पूरा दिन यहां नहीं आई। द मैन शेक्स हिज हेड, वो अपना सर हिलाता है। अ विंडो इज ओपन अक्रॉस द वे एंड द वुमन लुक्स आउट, एक दूसरे घर से एक विंडो खुलती है और वहां से औरत जो है अपना मुंह बाहर निकालती है और बोलती है। वो क्या कहती है, देखिएगा वोमन क्या कहती है। वोमन येलिंग हरी, यानी वो जल्दी में कहती है। अब वो हर बंदा परेशान है कि कोई मुझे वबा की वजह से, प्लेग की वजह से मुझे कोई बीमारी न लग जाए। देव गॉट द प्लेग अपोजिट, द मैन रन्स ऑफ हॉरिफाइड, यानी देव गॉट द प्लेग अपोजिट, यानी वो औरत कहती है कि यहाँ पे ये जो शख्स है इसको प्लेग है, इसको वबा है। द मैन रन्स ऑफ हॉरिफाइड, और एक आदमी दौड़ता हुआ खौफजदा वहां से आता है, गुजरता है, दौड़ता है। गैलीलियो, हैव यू हर्ड एनीथिंग अबाउट माई हाउस कीपर, गैलीलियो अब उससे भी ये पूछ रहा है कि मेरी हाउस कीपर को देखा तुमने? वो एंड्रिया सेट्टी के बारे में परेशान है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई है और एंड्रिया बाद में बताएगा आगे। वोमैन, योर हाउस कीपर कोलैप्स्ड इन द स्ट्रीट अप देयर, शी मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट्स व्हाई शी वेंट सो इनकंसिडरेट। अब यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारी जो वोमन, जो औरत है, वो बताती है कि तुम्हारी जो हाउस कीपर है वो कोलैप्स्ड हो गई है इन द स्ट्रीट अप देयर, यानी वो बीमार हो गई है या वो बहुत ज्यादा, उसको भी वबा ने ले लिया है। एंड शी मस्ट हैव रियलाइज, और उसे पता चल गया है। दैट इज व्हाई शी वेंट, और इसीलिए वो वहां से यहाँ से चली गई है। सो इनकंसिडरेट, तो उसकी कहती ये वजह है कि तुम्हारी जो वो हाउसमेट थी वो बीमार थी, तो उसने कहा कि मेरी वजह से दूसरे बीमार ना हो, तो वो यहाँ से निकल गई। शी स्लैम्स द विंडो शट, और वो विंडो अपनी बंद कर देती है। चिल्ड्रन कम डाउन द स्ट्रीट, बच्चे यानी कम डाउन द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट में आते हैं, गली में। दे सी गैलीलियो एंड रन अवे स्क्रीमिंग, वो गैलीलियो को देखते हैं और चीखते हुए वहां से दौड़ जाते हैं। वो क्या कहते हैं, गैलीलियो टर्न्स अराउंड, गैलीलियो उनकी तरफ देखता है। टू सोल्जर हरी अप इनकेस्ड इन आर्म, दो सोल्जर जो हैं वो बिल्कुल आर्मर में, उन्होंने आर्मर पहना हुआ है, यानी वो असला वगैरह और इससे लेस हैं, और वो आते हैं। सोल्जर गेट राइट बैक इंडोर, सोल्जर उसे कहते हैं कि राइट बैक, अपने दरवाजे में वापस जाओ। दे पुश द गैलीलियो बैक इनटू हिज हाउस विद हिज लॉन्ग पाइक्स, दे बोल्ट द डोर्स बिहाइंड हिम, यानी वो क्या करते हैं, अपने पॉइंटर के साथ, उनके पास उनके हाथों में छड़ियाँ हैं, और वो क्या करते हैं, अपने उनके साथ
वो उसको पीछे धकेल देते हैं, चलो भी अपने घर में अंदर जाओ, बाहर ना निकलो, वबा है, तुम खुद भी बीमार हो जाओगे और तुम खुद भी बीमार हो दूसरों को भी करोगे। गैलीलियो एट द विंडो, कैन यू टेल मी व्हाट हैपेंड टू द वुमन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस औरत के साथ क्या हुआ। अब एंट्रिया सर्टी के बारे में बड़ा परेशान है। सोल्जर आगे से बताता है, दे थ्रो देम ऑन द हीप, वो कहते हैं दे थ्रो देम, सोल्जर क्या करते हैं, दे थ्रो देम ऑन द हीप, वो कहते हैं, सोल्जर आगे से कहते हैं कि वो हमने यानी उन्होंने, लोगों ने उनको हीप पे, गार्बेज पे फेंक दिया। आगे वो मैंने आगे से कहती है, रीअपीयर्स एट द विंडो, वो विंडो से दोबारा आती है, देयर होल स्ट्रीक बैक देयर इज इन्फेक्टेड, व्हाई कांट यू क्लोज इट ऑफ, इसकी वजह से सारे लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तुम इसे बंद क्यों नहीं करते। द सोल्जर रोप द स्ट्रीट ऑफ, वो क्या करते हैं, रोप, वो स्ट्रीट को बैरिकेड लगा देते हैं, उसको बंद कर देते हैं ताकि कोई यहां से ना आए, बाहर ही ना निकले। वोमेन, बट दैट वाज, अब औरत का हस्बैंड बाहर है, वो कहती है कि तुम ये बार बार बाहर निकल रहा है, ये इन्फेक्टेड है, तुम इसे बंद क्यों नहीं करते अंदर। तो वोमेन आगे से कहती है, वो उसके घर के सामने ना, वो औरत की जहां से वो विंडो है उसकी और उसका घर जो है उसके सामने वो रस्सी लगा देते हैं ताकि कोई अंदर दाखिल ही ना हो सके, उसको चेन कर देते हैं, बैरिकेड कर देते हैं उसको कि ये बाहर ही ना निकल सके। तो औरत को अब गुस्सा आता है, वही औरत कहती है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम मेरे घर को भी लॉक कर दो, वो आगे से कहेगी मेरा हस्बैंड बाहर है, उसने आना है अंदर। तो वो मैंने आगे से कहती, बट दैट वाज नोबडी कैन गेट इनटू आवर हाउस, इस तरह तो कोई बंदा हमारे घर ही नहीं आ सकेगा। दिस पार्ट डज नॉट हैव टू बी क्लोज, इसको बंद ना करो, यानी मेरे घर को बंद ना करो। दिस पार्ट इज ऑल राइट, मेरी तरफ से जो मेरा घर है वो तो बिल्कुल साफ है, हमें तो कोई बीमारी नहीं। स्टॉप इट, रुको, कांट यू लिसन, क्या तुम सुनते नहीं हो। माई हस्बैंड इज स्टिल इन द टाउन, मेरा हस्बैंड जो है अभी भी टाउन में है। ही वॉन्ट बी एबल टू गेट थ्रू टू अस, वो हमें मिल नहीं सकेगा। यो एनिमल, तुम जानवर हो। शी कैन बी हर्ड इन साइड वीपिंग एंड स्क्रीमिंग, वो हम सुन सकते हैं उसे कि वो अंदर अपने घर में चिल्ला रही है। द सोल्जर लीव, सोल्जर वहां से चले जाते हैं। एट अनदर विंडोज एन ओल्ड वुमन अपीयर, अब एक और विंडो से एक बूढ़ी औरत भी मुंह निकालती है। गैलीलियो, दैट मस्ट बी द फायर बैक देयर, दैट मस्ट बी द फायर बैक देयर। तो गैलीलियो आगे से कहता है कि यहां से, कहता है कि शायद मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो द ओल्ड वुमन आगे से कहती है, देव स्टॉप्ड पुटिंग देम आउट वेयर देयर एनी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, वो कहती है, ओल्ड वुमन बताती है, वो हर चीज को बंद कर रहे हैं, रास्ते को जहां से इन्फेक्शन का खतरा है। ऑल दे कैन थिंक अबाउट इज द प्लेग, वो सिर्फ प्लेग के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप देखें तो अब कल की बात है, कल आई थिंक खबरें चल रही थी कि ईरान का बॉर्डर जो है वो टोटली सील कर दिया गया कि उधर से इधर और इधर से उधर ना जाएं, वहां पे भी कोरोना का खतरा है। यानी जहां जहां कोरोना वायरस का खतरा है, आप देख रहे हैं कि वहां गवर्नमेंट जो है और कंसर्न्ड जो इंस्टीट्यूशन है उस वहां पे बड़े मुतहरिक हैं और वो बड़े डायनेमिक हैं और वो उन चीज़ों को क्लोज कर रहे हैं, उनको बड़ा मोनिटर कर रहे हैं। तो ये इश्यूज जो हैं वो साथ साथ हैं। अब यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि जिस प्लेस से खतरा है, जिस घर से खतरा है, जहां वबा प्लेग का इशू है, वहां उसको क्या कर रहे हैं, वो बंद कर रहे हैं। ये प्लेग का मतलब होता है जी इन्फेक्शन, ये मैंने साथ लिखा हुआ, आउटब्रेक और अफ्लिक्शन कह लें, कर्स कह लें, ये सारी डिजीज जो हैं जो पर्सन टू पर्सन फैलती हैं, एक शख्स से दूसरे शख्स में, उसको कहते हैं प्लेग। Galerio, just like them, it is their whole system of government chopping us off. ये पूरा गवर्नमेंट का, इनका सारा पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम, फिर गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करते हैं लोग। तो जस्ट लाइक देम बिल्कुल ऐसे ही है, इट इज़ देयर होल सिस्टम, ये सारा उनका गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसा ही है। चॉपिंग अस ऑफ, हमें ये काट रहे हैं। लाइक द डिजीज ब्रांच ऑफ सम बैरन्स फिग ट्री, जैसे कि किसी पाइन एप्पल के जो ट्रीज होते हैं उसको काटते हैं, ये हमें ऐसे चॉप कर रहे हैं, चॉप ऑफ कर रहे हैं। द ओल्ड वुमेन, दैट इज नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। इट इज जस्ट दैट दे आर पावरलेस, वो तो बिल्कुल पावरलेस हैं, उन्होंने क्या करना है, वो कहती है कि वो मजबूर हैं। गैलीलियो, आर द ओनली वन इन योर हाउस, आर यू द ओनली वन इन, वो औरत से पूछता है कि क्या तुम अकेली हो अपने घर में। तो ओल्ड वुमेन आगे से कहती है, यस माई सन सेंट मी अ नोट, हाँ मेरे बेटे ने मुझे एक नोट जो है वो भेजा है। थैंक गॉड ही गॉट अ मैसेज लास्ट नाइट टू से समबडी बैक देयर्स हैड डाइड सो ही डिड नॉट कम होम। देयर 11 केसेस इन आवर डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द नाइट। अब देखें ना, जैसे वो कोरोना वायरस के कहते हैं, यहाँ पे 1000 केसेज हैं
तो यहाँ पे वो कहती है कि द थैंक गॉड ही गॉट मैसेज लास्ट नाइट, शुक्र है उसे मैसेज मिल गया, और वो एंड टू से समबॉडी बैक देयर हैड डाइड, कि उससे पता चल गया कि किसी की यहाँ डेथ हो गई है, सो ही डिडंट कम, वो इसलिए घर ही नहीं आया, वो इसलिए घर नहीं आया कि उसे पता चल गया यहाँ पे वबा फैली हुई है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों एक बंदे की डेथ भी हो गई है। देयर वर 11 केसेस इन आवर डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द लास्ट नाइट, यानी ड्यूरिंग द नाइट यानी नाइट के दौरान यहाँ पे 11 केसेस जो हैं इस प्लेग के रजिस्टर्ड हो गए हैं या सामने आ गए। गैलीलियो, आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर नॉट मेकिंग माई हाउस कीपर लीव इन टाइम। हाँ, मैं अपने आप को ब्लेम करता हूँ कि मैंने अपनी हाउसमेड को टाइम पे नहीं निकलने दिया। आई हैड सम अर्जेंट वर्क, मुझे कुछ अर्जेंट काम करने थे ज़रूरी, बट शी हैड नो कॉल टू स्टे, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था कि वो रुके, लेकिन ये उसके साथ डिस्कोर्स करता रहता है तो वो काफ़ी देर बैठती रहती है, इसलिए लेट हो जाती है। द ओल्ड वोमन, वी कांट लीव इधर, हम छोड़ भी नहीं सकते। Who's to take us in, हमें कौन लेगा। No need for you to blame yourself, तुम्हें अपने ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, यानी हम जाएं भी तो कहाँ। I saw her, मैंने उसे देखा, she left early this morning, वो सुबह सवेरे जो है निकली है, around 7 o'clock, सुबह 7 बजे। She must have been ill, वो जरूर बीमार होगी। When she saw me coming out to fetch in the bread, जब मैं खाना ला रही थी, she deliberately kept away from me, वो खुद ब खुद मुझसे दूर हो गई। इसका मतलब है कि वो बीमार थी। She didn't want them to close off your house, यानी वो ये नहीं चाहती थी कि तुम्हारा घर भी जो है वो इस तरह बैरिकेड और इस तरह बंद हो जाए, बट दे आर बाउंड टू फाइंड आउट, लेकिन वो मजबूर हैं कि वो उसको फाइंड करें, यानी ऐसे ही कोई बीमार है या जिसको वबा है या जिसको प्लेग है तो उन्होंने फाइंड तो करना है उसको। A rattling sound is heard, एक आवाज़ सुनाई देती है, यानी कुछ लोग ना आवाज़ सुनाई। कल भी हमने डिस्कस किया था, वो कहते थे उनका एक मानना था कि एक स्पेशल ये हवा के अंदर ना एक किस्म की पोल्यूशन होती है, एक किस्म की गैस है इस हवा में। जैसे मिसाल के तौर पर कोरोना वायरस है तो कोई ये समझे कि ये शायद ये मौसम के अंदर है, ये हवा के अंदर है, तो हमें कुछ ऐसा पढ़ना चाहिए, हमें कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए, आवाज़ें देनी चाहिए, या यहाँ से हम यहाँ से जो हवा है ये यहाँ से निकल के किसी और इलाके में चले जाए। अब या शायद आपको पता हो ये टिड्डी दल जो है ना, इस तरह के ये कब किसी इलाके में आते हैं तो क्या करते हैं लोग, ड्रम बीटर जो होते हैं वो ड्रम बजाते हैं ताकि वो यहाँ से उड़ के किसी साइड पे चले जाए। तो गैलीलियो ना उनके बिलीव पे हंसता है कि ये कैसा बिलीव है। वो कहते हैं कि ये हवा के अंदर ये कोई बीमारी आ गई है, हमें कोई चीज़ यहाँ पे जोर शोर करना चाहिए ताकि यहाँ से कहीं और चली जाए ये बीमारी, हवा में कहीं और चली जाए। तो उस पर ना उन चीज़ों पे हंसता है वो। द ओल्ड वोमन दे आर ट्राइंग टू मेक नॉइज, वो इसलिए नॉइज, अब वो कहता है ये आवाज़ कहाँ से आई है। रैटलिंग साउंड इज हर्ड, व्हाट इज दैट। ये जो कहता है ये क्या है। द ओल्ड वोमन दे आर ट्राइंग टू मेक नॉइज टू ड्राइव अवे द क्लाउड्स विद द फ्लैग सीड इन देम। वो कहता है ओल्ड वोमन बताती है कि वो ना ऐसे इसलिए शोर कर रहे हैं, ये ऊपर वो बादलों में कहते हैं बीमारी है तो वो शोर मचाएंगे, आवाजें देंगे तो वो बादल जो है आगे चला जाएगा तो उनकी बीमारी भी खत्म हो जाएगी। गैलीलियो रोर्स विद लाफ्टर, गैलीलियो हंसता है, हा 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 की आवाजें निकालता है। क्या कहता है, द ओल्ड वोमन फैंसी बीइंग एबल टू लाफ नाउ। हाँ, अजीब बात है, कहती है प्लीज टू, मैं बड़ी खुश हुई हूं कि तुम इस सूरत हाल में भी हंस रहे हो। अ मैन कम्स डाउन द स्ट्रीट एंड फाइंड इट रोप्ड ऑफ, यानी एक स्ट्रीट से एक आदमी आता है और उसको क्या रस्सी से बांधा हुआ है। रोप ऑफ का मतलब होता है हुक्ड, बांधना। गैलीलियो है यू, गैलीलियो से कहता है यू, तुम, दिस स्ट्रीट इज क्लोज्ड ऑफ एंड आई नथिंग टू डू, नथिंग टू ईट। हे गैलीलियो से कहता है ये जो बिल्कुल बंद है ये गली और तुम यहाँ पे आ गए हो, आई नथिंग टू ईट, है मेरे पास कुछ नहीं है खाने को। गैलीलियो ने शोर मचाया उसे देख के। द मैन हैज क्विकली हरीड अवे, वो मैन जो है वो बड़ी तेजी से वहां से निकल जाता है, भाग जाता है। द ओल्ड वोमन दे मे ब्रिंग समथिंग, इफ नॉट आई कैन लीव अ जग ऑफ मिल्क आउटसाइड योर डोर टुनाइट इफ यू आर नॉट स्केर्ड।
तो वो औरत उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए, अगर तो वो तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आए, ये लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं, अगर ये तुम्हारे लिए खाने को कुछ ले आए तो ठीक है, अदरवाइज मैं तुम्हारे घर के बाहर एक दूध का जग छोड़ जाऊंगी आज। गैलीलियो आगे से कहता है, हे कैंट एनीबॉडी हियर अस, क्या कोई शख्स भी हमें नहीं सुन सकता? ऑल ऑफ सडन एंड्रिया स्टैंडिंग बाय द रोप, ही हैज बीन क्राइंग। तो अचानक वो देखता है कि उस रोप के पास जो रस्सी उन्होंने घर के बाद बांधी हुई है, वहां पे एंड्रिया जो है वो खड़ा है। ही हैज बीन क्राइंग, और वो चीख रहा था, एंड्रिया हाउ डिड यू गेट देयर? एंड्रिया तुम कैसे यहाँ पे आ गए? तो आगे से एंड्रिया कहता है, आई वॉज हियर फर्स्ट थिंग, I knocked but you didn't open your door. They told me you. और कहता मैं तो पहले यहाँ पे आया था, लेकिन मैंने तुम्हारा कहता दरवाजा खटखटाया, लेकिन तुमने नहीं खोला। गैलीलियो आगे से कहता है, Didn't you go off in the carriage? क्या तुम उस कैरेज के साथ, उस बग्गी के ऊपर तुम नहीं गए? एंड्रिया आगे से कहता है, Yes, but I managed to jump out. मैं उसके साथ गया था, लेकिन मैंने फिर जंप लगा दिया, मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। वर्जीनिया went on, can't I come in? तो फिर वो कहता है कि वर्जीनिया आगे से, वर्जीनिया वेंट, वर्जीनिया चली गई, कैंट आई कम इन, लेकिन कहता है कि मैं जो है वो वहां नहीं जा सका। द ओल्ड वुमेन्स, नो यू कैंट, यू हैव टू गो ऑन टू द अर्सुलिन्स। अर्सुलिन का मतलब होता है, ये इंस्टीट्यूशन होता है एक नन्स का। उर्सुलिन क्या क्या मतलब है कि एक इंस्टीट्यूशन है नन्स का, जहां पे वो क्या करती हैं, ऑर्डर्स ऑफ नन है, ये एक अदारा है नन्स का, और उसमें वो देखभाल करती हैं बीमार लोगों का। ये उन्होंने रिलीजियस बनाया हुआ है। यू विल हैव टू गो टू द अर्सुलिन, तुम्हें अर्सुलिन जाना चाहिए था, उस अदारे में जो अदारा है मजहबी, उस वहां पे जाना चाहिए था। वहां क्या हो रहा है, योर मदर्स में भी देयर, तुम्हारी मदर शायद वहां पे हो। एंड्रिया आगे से कहता है, मैं वहां गया, बट दे वुडंट लेट मी टू सी हर, शी इज टू इल, वो बहुत ज्यादा बीमार है और उन्होंने मुझे उससे मिलने नहीं दिया। गैलीलियो, डिड यू वॉक द होल वे बैक, क्या तुम वहां से पैदल चल गए हो? इट्स 3 days सिंस यू लेफ्ट, यू नो, तुम्हें पता है कि 3 दिन पहले तुम यहाँ से, 3 दिन हो गए और तुम यहाँ से गए। एंड्रिया, इट टुक ऑल दैट टाइम्स, डोंट बी क्रॉस विद मी, दे अरेस्टेड मी वंस। हाँ इतना ही, दे टुक ऑल दैट टाइम, हाँ इतना टाइम लगा था, डोंट मेरे साथ नाराज ना हो। क्रॉस का मतलब होता है एंग्री। दे अरेस्टेड मी वंस, उन्होंने मेरे एक दफा अरेस्ट भी किया था। गैलीलियो आगे से कहता है, डोंट क्राई, यू नो आई हैव फाउंड आउट लॉट ऑफ थिंग्स सिंस यू वेंट, शैल आई टेल यू? कहता है तुम परेशान ना हो। गैलीलियो चूंकि उसका उस्ताद है तो वो उसे कह रहा है कि तुम परेशान ना हो, मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ी दिलचस्प चीज फाइंड की है। शैल आई टेल यू, क्या तुम्हें मैं बताऊं? एंड्रिया नोड्स, वो सारे हिलाता है, बिटवीन हिज सोब, चाहे वो सिसकियां ले रहा है और रो रहा है, और साथ ही वो सारे हिलाता है। लिसन केयरफुली और यू वोंट अंडरस्टैंड, मुझे गौर से सुनो नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आएगी। यू रिमेंबर मी शोइंग यू द प्लैनेट वीनस, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें वीनस दिखाया था। डोंट बॉदर अबाउट दैट नॉइज, इस नॉइज के बारे में परेशान ना हो, इट इज नथिंग, ये कुछ नहीं है ये जो वो बात। कैन यू रिमेंबर, क्या तुम याद कर सकते हो? यू नो वट आई सा, तुम्हें पता है मैंने क्या देखा? इट्स लाइक द मून, ये बिल्कुल मून जैसा था, जो मैंने देखा है वो मून जैसा। आई हैव सीन इट हाफ सर्कल, मैंने उसे हाफ सर्कल में देखा। आई हैव सीन इट एज अ सिकल, मैंने उसे द्रांति की शेप में देखा। वो चांद के बारे में बात कर रहे। वट वुड यू से टू दैट, तुम उसे क्या कहोगे? आई कैन डेमोन्स्ट्रेट द होल थिंग टू यू विद अ लैंप एंड अ स्मॉल बाल, मैं तुम्हें ये स्मॉल बाल और लैंप के साथ ये चीज सारी समझा सकता हूँ। दैट प्रूव इट इट इज येट अनदर प्लैनेट विद नो लाइट ऑफ इट्स ओन, कि यहाँ पे एक और प्लैनेट है जिसकी अपनी रोशनी हमारे प्लैनेट के साथ तरह नहीं है। मून की बात कर रहा है। एंड इट टर्न्स अराउंड द सन, और ये सन के गिर्द घूमता है इन अ सिंपल सर्कल, सादा से सर्कल नहीं। इजंट दैट द मार्वेलस, ये शानदार नहीं है? तो एंड्रिया आगे से कहता है, सॉबिंग, सिसकियां लेते हुए, यस एंड दैट्स अ फैक्ट, और ये हकीकत है। गैलीलियो क्वाइटली, आई नेवर आस्क्ड हर टू स्टे, मैंने तो उसे नहीं कहा कि वो स्टे करे, मैंने उसे इंसिस्ट नहीं किया, मैंने सर्टी को इंसिस्ट नहीं किया था कि वो स्टे करे। एंड्रिया से नथिंग, एंड्रिया आगे से सेज नथिंग। गैलीलियो आगे से कहता है, बट ऑफ कोर्स इफ आई हैडंट स्टे माई सेल्फ इट वुडंट हैव हैपन, अगर मैं यहाँ पे स्टे ना करता तो शायद तुम्हारी मदर जो है वो बीमार ना होती, या ये मामला जो है वो ना होता। एंड्रिया आगे से कहता है, दे विल हैव बिलीव यू नो वोंट दे, दे विल हैव टू बिलीव यू नो वोंट दे,
अब वो कहता है कि चूंकि मैं यहाँ रहा हूँ, मैंने ये सारा ऑब्जर्व कर लिया, अपने नोट्स ये सब कुछ जो है, इसलिए आगे एंड्रिया कहता है हाँ तुम कामयाब हो गए, दे विल हैव टू बिलीव यू नाउ, अब तुम पे यकीन करना पड़ेगा क्योंकि तुमने साबित कर लिया। आगे गैलीलियो कहता है आई हैव गॉट ऑल द प्रूफ आई नीड नाउ, वंस दिस इज ओवर आई टेल यू आई शैल गो टू द रूम एंड शो देम। अब वो कहता है कि अब मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, प्रूफ, अब मैं जाऊंगा रूम में और वहां उनको जाके दिखाऊंगा। Down the street come two masked men with the long poles and the buckets. अब दूर हम देखते हैं, डाउन द स्ट्रीट के में देखते हैं, नीचे हम देखते हैं कि दो आदमी जो उन्होंने मास्क पहने हुए हैं और दे विद द लॉन्ग पोल्स एंड बकेट, और उन्होंने हाथों में बाल्टियां पकड़ी हुई। दे यूज दीज टू पास ब्रेड थ्रू द, और उन्होंने बाल्टियां पकड़ी और लोग घर घर खाने दे रहे हैं और अपने आप को मुंह पे चढ़ाए हुए मास्क, जैसे कोरोना वायरस से बचने के लिए डॉक्टर्स ने आजकल चढ़ाए हुए। दे यूज्ड इट टू पास ब्रेड थ्रू द विंडो टू द ग्लेलियो एंड ओल्ड वुमेन। वो ना आगे आते हैं और वो ब्रेड पास करते हैं ग्लेलियो और ओल्ड वुमेन। द ओल्ड वुमेन एंड देयर इज अ वुमन क्रॉस देयर विद 3 चिल्ड्रन, लीव समथिंग फॉर हर टू। और वो बूढ़ी औरत कहती है कि यहाँ साथ ही ना एक और औरत है बेचारी, उसके 3 बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ दे दो। ग्लेलियो आगे से कहता है बट आई हैव गॉट नथिंग टू ड्रिंक, मेरे पास तो पानी भी नहीं है पीने के लिए। देयर इज नो वाटर लेफ्ट इन द हाउस, और घर में कोई पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। द टू श्रग्स देयर शोल्डर, और दोनों जो लोग हैं ना, वो दोनों जो मास्क पहने हुए वो ऐसे अपने श्रग होता है शोल्डर हिलाना, वो ऐसे शोल्डर हिलाते हैं। विल यू बी कमिंग बैक टुमारो? अब ग्लेलियो उनसे पूछता कि तुम वापस आओगे, मेरे घर में पानी नहीं है, पानी भी दोगे मुझे? तो आगे से शोल्डर हिलाते हैं, भाई हमारे पास कोई पानी नहीं है। विल यू सी कमिंग बैक टुमारो, क्या तुम कल वापस आओगे? टुमारो कि कल तुम क्या फिर वापस आओगे, फिर आओगे हमें कुछ देने? वन मैन इन मफल्ड, मफल्ड होता है बंद आवाज में, खामोशी में। म्यूटेड वॉइस में एक कहता है सिंस ही हैज अ रेज ओवर हिज माउथ, उसके ना उससे बड़ा गुस्सा आता है। Who know what will happen tomorrow? कौन जानता है कि सुबह क्या बनेगा, पता नहीं तुम्हारे साथ सुबह क्या बनेगा, तुम बचोगे या मर जाओगे, वो ये कह रहा है। अब जो कोरोना वायरस में वहां पे पड़े हुए हैं लोग, वो बेचारे कहते हैं हमें यहां से निकालो, हम कहीं हमारी डेथ ना हो जाए, हम वायरस का शिकार ना हो जाए। तो अब लोग वहां पे अगर वो लेट्स सपोज वहां डिग्री लेने गए हुए हैं तो वहां पे ये पूछने लग जाए भाई मेरी डिग्री नहीं मुझे मिल रही, तो कितना अजीब लगेगा। तुम भाई अपनी जान बचाओ और दौड़ो यहां से बचो। अब ये देखो क्या कहेगा, देखना सुनना, ये बड़े आयरनी है इसमें, इसको अंडरलाइन कर। इफ यू डू कम, अगर तुम सुबह आते हो, कुड यू ब्रिंग मी अ स्मॉल बुक आई नीड फॉर माई वर्क, क्या तुम मेरे लिए सुबह एक किताब लेकर आओगे, मुझे जरूरत है इसके लिए, इसको अंडरलाइन कर ले। ये भी एक आयरनी है कि वो इतना खोया हुआ है कि उसे अपनी दुनिया की होश ही नहीं है कि भाई लोग मर रहे हैं और वो उन्हें कह रहा मेरे लिए सुबह किताब भी लेते हैं। द मैन गिव्स अ स्टिफल्ड लाफ, वो उसकी तरफ हंसता है और एज इफ अ बुक कुड मेक एनी डिफरेंस, क्या बुक से कोई डिफरेंस, क्या बुक से कोई फर्क पड़ेगा? यू विल बी लकी इफ यू गेट ब्रेड, तुम बड़े खुशकिस्मत हो कि अगर तुम्हें रोटी ही मिल जाए। आगे गैलीलियो कहता है बट दिस बॉय इज माई प्यूपल, देखो ये जो बॉय है ये मेरा स्टूडेंट है, ही विल बी देयर एंड कैन गिव इट टू यू फॉर मी, और अगर तुम आओ तो इसे जरूर तुम देना वो किताब। इट इज द चार्ट, ये देखो ये चार्ट है, गिविंग द पीरियोडिसिटी ऑफ द मर्करी, ये उसकी पीरियोडिसिटी के बारे में बताता है, ये उसकी पीरियोडिसिटी के बारे में बताता है। It is a chart giving the periodicity of the mercury. Andrea, I have misled it, और मैं पहले खुद मिसलेड हुआ या मैं इसमें खुद धोखे में रहा इसमें, इसकी वजह से। Can you give it? Can you get me one from the school? अगर वो मेरे लिए नहीं लाते तो क्या तुम स्कूल से ले आओगे? एंड्रिया वो कहता है। The men have gone now, अब वो लोग चले गए हैं। एंड्रिया, of course I will get it, Mr. Glenly, exact. वो कहता है एंड्रिया मैं जरूर ले आऊंगा, परेशान क्यों होते हो? ग्लेलियो लाइकवाइज गोज इन, ग्लेलियो जाता है। द ओल्ड वुमन कम्स आउट ऑफ द हाउस ऑपोजिट टू पुट अ जग आउटसाइड ग्लेलियोस डोर। ओल्ड वुमन अपने घर से बाहर निकलती है और जग उठा के उसके घर के बाहर रख देती है। सो दैट्स हाउ द स्टोरी, you could say scene 5 has been finished, and now we going to talk about scene 6. What happened in scene 6?
सीन 6 के अंदर हम देखेंगे, देखिएगा सीन 6 के अंदर यूं होगा कि गैलीलियो गैलीली यहां से रूम जाएंगे, वहां पे जितने भी रिलीजियस मंक्स हैं और जितने भी वो रिलीजियस मोनेस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं वो सारे इकट्ठे हुए। वहां पे ये सारे प्रूफ और सॉलिड प्रूफ के साथ अपनी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, प्रूफ है, हाइपोथेसिस है, उनको प्रूव किया है इसने, ये वहां पे लेकर गया है। अब वहां पे ये सारी चीजें लेकर गया है और एक वहां पे रिलीजियस, और वो उसका नाम है क्लेवियस एस्ट्रोनॉमर है, उसको वो दिखाता है अपने प्रूफ, और वो प्रूफ वो उसके ऊपर हंस रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये सारे यूजलेस हैं और ये अरिस्टोटल को के जो फंडामेंटल आइडियाज हैं ये बड़े अनसाइंटिफिक सी चीजें लेकर आ गया है, इसको वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसके ऊपर हंस रहे हैं। तो क्लेवियस जो है वो बहुत जल्द इसको रिजेक्ट कर देगा, लेकिन क्लेवियस जब उसे कीनली ऑब्जर्व करता है और उसके सारे जितने भी उसके प्रूफ्स हैं उनको देखता है और उसके बाद इंडोर्स करता है कि गैलीलियो गैलीली बिल्कुल ठीक कहता है। अब इसके ऊपर इसके बाद जो है वो टसल जो है वो मजीद स्टार्ट हो जाएगी। हम इस पूरे सीन के अंदर यही चीज देखेंगे और ये इतना बड़ा नहीं है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपने इस सारे सीन को पढ़ना है और कल इंशाल्लाह ताला हम सीन 6 नहीं सीन 7 जो है वो हम पढ़ेंगे। आगे मैं आपको सीन 7 पढ़ाऊंगा। So hope you've learned scene 5 and now let's talk about assignment, today's assignment. आज की असाइनमेंट को ज़रा देखते हैं, ओपन कीजिएगा। हाँ जी, असाइनमेंट देखिएगा। असाइनमेंट आज की बड़ी ज़बरदस्त है। इसके अंदर डिस्कस किया गया है इम्प्रेशनिज्म क्या होता है, एक्सप्रेशनिज्म क्या होता है, सूरियलिज्म क्या होता है, नेचुरलिज्म क्या है, रियलिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। ये हमने पहले भी देखी हुई हैं। लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट जो है वो बता देता हूँ। अच्छा जी, इस असाइनमेंट के अंदर इन टुडेज असाइनमेंट विल सी मॉडर्न ड्रामा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक। एक मॉडर्न ड्रामा किस तरह का है, ब्रैकेट बेर्टोल्ट का जो एपिक थिएटर का स्टाइल है प्रेजेंट करने का, वो क्या है, कैसा है, विल सी इट। इसके अंदर हम देखते हैं कि वो बात करता है मॉडर्निज्म की, कि मॉडर्निज्म कहां से कहां तक स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आ सकता है, पेज नंबर है 337, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न ड्रामा। 337 करंट की जो बुक है, लेकिन मैं आपको थोड़े से अपनी तरफ से आइडिया समझाता हूँ, उसके बाद असाइनमेंट समझनी आसान हो जाएगी। ज़रा देखिएगा। पहला इसके हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न ड्रामा। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ एपिक थिएटर्स इन द लाइट ऑफ ब्रैकेट्स प्ले। ब्रैकेट्स के प्ले की लाइट में या ब्रैकेट्स के प्ले को मद्देनजर रखते हुए उसके अंदर जो एपिक थिएटर के फीचर्स हैं वो आपने डिस्कस करने हैं। तो डेफिनेटली जब आप ब्रैकेट्स के आइडिया को डिस्कस करेंगे तो वो मॉडर्निज्म की बात करेगा, वो सोसाइटी, मैन इन सोसाइटी की बात करेगा, मैन इंसान की जो प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर वो उनको डिस्कस करेगा। वो ये डिस्कस नहीं करेगा कि गॉड और इडिपस का अपोलो के साथ क्या अफेयर था, अपोलो को किस तरह अपोलो ने किस तरह इडिपस को अफेक्ट किया, किस तरह फॉर्च्यून टेलर जो है वो कैसे अफेक्ट कर रहा है, वो इन बातों को तो डिस्कस ही नहीं करते। वो डिस्कस करते हैं, मॉडर्न प्ले राइट डिस्कस करते हैं इंसान के ऊपर सोसाइटी कैसे असरअंदाज हो रही है। हमने हेडा गैबलर को पढ़ा तो सोसाइटी टोटली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हम एंटन चेकअप को पढ़ते हैं, चेरी आर्चर्ड को, तो हमें पता चलता है कि सोसाइटी जो है वो कैसे डिस्टर्ब कर रही है, उसको कैसे चेंजेस आ गई हैं, बोर्जोआ क्लास जो है वो कैसे ऊपर आ गई है और जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास जो है वो अब गोइंग डाउनवर्ड है। तो क्या क्या प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी जो है वो कैसे मोनोपोलाइज कर रही है, सोसाइटी कैसे कंट्रोल कर रही है, सोसाइटी कैसे इंसान को अफेक्ट कर रही है। सोसाइटी जो है वो एज अ विलन यहां पे कंसीडर होता है और सोसाइटी डिस्कस होती है। फिर मॉडर्न ड्रामा के अंदर आप देखेंगे कि इंसान जो है वो सोसाइटी के हाथों परेशान है,
सोसाइटी उसको अफेक्ट कर रही है। हम देखेंगे कि मोस्टली फीमेल्स फेमिनिज्म जो है वो बड़ा डिस्कस होता है। राइटर मोस्टली या तो फेमिनिस्ट होंगे। औरत के मॉडर्न जो प्रॉब्लम है, औरत जो है वो उसका सेंट्रल पॉइंट है। औरत चूंकि एक घर से ताल्लुक रखती है और पूरा घर जो है वो तकरीबन औरत जो है उसको मैनेज कर रही होती है। जब आप मॉडर्न ड्रामा को देखोगे तो सोसाइटी डिस्कस होगी, सोसाइटी के अंदर औरत है जो उसको चला रही है, तो फिर वो औरत भी डिस्कस होगी कि मेल जो है ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। मेल जो है वो क्या करता है, औरत को कंट्रोल करता है, उसको उसकी विल्स के मुताबिक, उनकी विल के मुताबिक नहीं चलने देता, उसको एंजॉय नहीं करने देता, उसको उसका जो वर्क ज्यादा करती है लेकिन उसको उसका मुआवजा जो है उसके लेवल पे नहीं मिल रहा, उसको इंडोर्स नहीं किया जा रहा, उसकी कैपेबिलिटी को, उसकी पोटेंशियल को, उसके वर्क को। तो बहुत सारी चीजें जो है वो फेमिनिज्म से रिलेटेड भी हम डिस्कस, जो भी हो ड्रामा, जो भी आप प्ले, जैसे हेडा गैबलर है उसमें हमने देखा, तो इसके अंदर भी हम देखेंगे। तो मॉडर्न प्ले के अंदर कुछ फेमिनिज्म का भी डिस्कशन होता है। फिर एपिक थिएटर के अंदर कैरेक्टर जो हैं वो बड़े वाजे जो हैं, बड़े एक्सप्लिसिट होते हैं। दे आर नॉट इम्प्लिसिट, दे आर एक्सप्लिसिट, दे एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। कोरागस, कोरस और जितने भी वहां पे हेल्प आउट करने वाले कैरेक्टर होते हैं एंशिएंट ड्रामा के अंदर, क्लासिकल ड्रामा के अंदर, वो सारे अब यहाँ पे एज इन्फॉर्मर यहाँ पे यूज होते हैं। वो इंफॉर्मेशन खुद दे रहे होते हैं कैरेक्टर, वो सारे काम कैरेक्टर्स खुद परफॉर्म करते हैं। रोल फैमिली, जब वोमेन डिस्कस होगी तो रोल फैमिली डिस्कस होगा, उसका रोल क्या है। और जो मॉडर्न ड्रामाटिस्ट हैं वो इसको सेंटर में रखते हैं, फीमेल को डिस्कस करते हैं, फीमेल के रोल को डिस्कस करते हैं। और फिर हम ये देखेंगे मॉडर्न ड्रामा के अंदर, हम ये देखेंगे कि ये सोसाइटी जो है वो अथॉरिटी को चैलेंज करती है। ये मॉडर्न ड्रामा जो है वो अथॉरिटी को चैलेंज करता है, चाहे अथॉरिटी हस्बैंड की शक्ल में हो, चाहे अथॉरिटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो, चाहे अथॉरिटी चर्च की हो, चाहे पेरेंट की हो, चाहे सोसाइटी की हो। तो किसी भी फॉर्म में अगर अथॉरिटी है तो मॉडर्न प्ले राइट उसको एड्रेस करेगा, क्योंकि ये इश्यूज मौजूद हैं। बाज़ पेरेंट्स जो हैं वो बड़ा डोमिनेट करते हैं बच्चों को, फादर करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, मदर कर रही है, चर्च कर रहा है, सोसाइटी कर रही है। ये सारी चीजें जो है मॉडर्न प्ले राइट जो है वो डिस्कस करेंगे, आप इसको एलेबोरेट कर सकते हैं। और कार्ल मार्क्स जो है और फ्राइड, सिगमंड फ्राइड जो है, उसकी थीरीज जो है वो प्रोमिनेंट रहेंगी। मॉडर्न प्ले राइट जो है इनको ज्यादा एड्रेस करेंगे। आपने देखा मिलर को देखें आप, उसके अलावा दूसरे राइटर यूजीन ओनील को देखें, तो बहुत सारे राइटर्स जो हैं, इवन कि आप हेनरी कैप्सन को देखें, तो ये लोग जो हैं फ्राइड के कंसेप्ट जो हैं, सिगमंड फ्राइड के जो कंसेप्ट हैं, एडिपस और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स और सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज, कार्ल मार्क्स की जो क्लासलेस सोसाइटी है, इसके सारे इश्यूज जो हैं वो आपको इसके अंदर देखने में मिलेंगे। पोएट्री जो है वो रीजन की लैंग्वेज, पोएट्री जो है वो किसकी, इमोशन, पैशन, फीलिंग्स की लैंग्वेज है। तो प्रोज जो है वो किसकी लैंग्वेज है, वो रीजन की लैंग्वेज। जैसे ब्रेकन ने प्रोज में कितनी रीजनेबल बातें की है, कितना रीजन को उसने अप्रोच किया है और रैशनल बातें की हैं। तो बिल्कुल इसी तरह प्रोज को यूज करता है हमारा राइटर जो है, वो भी बर्टोल्ड ब्रैकेट सहारा लेता है प्रोज का अपने प्ले को लिखने के लिए। लेकिन ये चीज़ें जो हैं हम देखेंगे। इसके बाद इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, सुरियलिज्म और उसके बाद मॉडर्निज्म, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। अच्छा जी, इस प्ले के अंदर, इस असाइनमेंट के अंदर हम एक चीज़ और देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि चौसर का मॉडर्न टाइम था, कुछ लोग ये कहते हैं, आपको नजर आएंगे, हम असाइनमेंट पढ़ेंगे, बल्कि हमने पढ़ी होंगी कि शेक्सपियर का दौर जो है वो मॉडर्न एज थी। कुछ लोग ये कहेंगे विक्टोरियनिज्म जो है उसके दरमियान जो जब उसको ब्रेक किया गया था उसके रूल्स को, वो मॉडर्निज्म है। कुछ कहेंगे कि पीरियोडिकली हम इसको रफली डिवाइड कर सकते हैं, मॉडर्न फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और 1945 तक का जो पीरियड है वो मॉडर्निज्म है। यानी डिफरेंट लोग डिफरेंट एंगल से मॉडर्निज्म को इंटरप्रेट करते हैं। तो एनी हो, मॉडर्निज्म जो है वो एक अलग एक आइडियालॉजी थी, एक स्टाइल ऑफ राइटिंग था, एक स्टाइल ऑफ हैंडलिंग विद द टेक्स्ट था। तो ये एक एज है
मॉडर्निज्म की, इसके बाद पोस्ट मॉडर्न एज आती है, दोनों में भी फिर डिफरेंस मौजूद है, वो राइटर ने पॉइंट आउट किया हुआ है। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ एपिक, डिस्कस द मेन फीचर ऑफ एपिक थिएटर्स इन द लाइट ऑफ द ब्रैकेट्स प्ले ग्लेलियो। जब ये क्वेश्चन आ जाए तब भी आपने ये लगाना है, हाउ फार डू यू थिंक ब्रैकेट इज सक्सेसफुल इन अप्लाइंग हिज थीरीज अबाउट द ड्रामा इन ग्लेलियो गैलीली। आप जस्ट देखते जाएंगे, आप वही चीजें जो मैंने आपको बताई हैं यही अंदर है इसके। मॉडर्निज्म हैज नो बिकम अ क्रिटिकल टर्म, इट डज नॉट मीन द प्रेजेंट डे, इट स्टैंड फॉर द सर्टन एटीट्यूड and techniques which relate to the specific period. Chronology का मतलब होता है, ये एक ऑर्डर होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह ऑर्डर में कोई चीज बात की जाती है, उसे chronologically कहते हैं। Chronologically it is very difficult to define modernism as it is very difficult to define renaissance। जैसे renaissance को आप डिफाइन नहीं कर सकते, आप कहेंगे वो उसमें बहुत सारी उस वसी उसकी डेफिनेशन होगी, री इंटरप्रिटेशन, रीओरिएंटेशन, रीबर्थ, रीजनरेशन, रीट्रांसलेशन, किसी चीज को इस तरह दोबारा से उसको रिवाइव करना, उसको रेनेसेंस कहते हैं। इन वन सेंस मॉडर्निज्म स्टार्टेड विद द चासर, द अनदर सेंस इट इज मॉडर्निज्म स्टार्टेड विद द चासर, and another sense it is associated with the age of Shakespeare. Still is another sense it is described as a revolt against the Victorianism. To be more specific, तो थोड़ा सा और हम स्पेसिफिक होकर कहें तो it can be said that the term modernism related to the period roughly extended from the First World War to the Vietnam's War। बात समझ आ गई कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे कहते नजर आएंगे कि चौसर का वक्त भी तो मॉडर्न वर्ड था, उसने उस वक्त के लिहाज से वो मॉडर्न था। फिर शेक्सपियर ने भी अच्छा लिखा, थोड़ा सा मॉडर्न हो गया, तो शेक्सपियर का दौर भी अपने लिहाज से, यानी मॉडर्निज्म हर राइटर जो है वो अपने दौर का मॉडर्न ही होता है। लेकिन मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म ये मूवमेंट है, ये लिटरेरी मूवमेंट है। जब हम इनके रिलेटेड असाइनमेंट पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा, इसके रिलेटेड एक स्पेसिफिक असाइनमेंट मैंने बनाई हुई है आपके लिए। मॉडर्न ड्रामा वाज स्टार्टेड बाय द इब्सन्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी मॉडर्न ड्रामा उसने कहा कि उस वक्त स्टार्ट हुआ था एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, इब्सन ने इसको स्टार्ट किया था। इट वॉज अ कंप्लीट डिपार्चर फ्रॉम द क्लासिकल ड्रामा, और मैंने पहले बताया क्लासिकल ड्रामा में गॉड और मैन का रिलेशन, फेट और मैन का रिलेशन यही डिस्कस होता था। आप क्लासिकल मिथोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी ग्रीक ट्रेजेडीज हैं, आप अगर उनको पढ़ें तो आपको पता चलेगा फेट, गॉड और सुपरनेचुरल एलिमेंट वो डोमिनेट हैं और वो अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं उनकी लाइफ को, उनके डाउनफॉल को। It was a complete departure from the classical drama. It deal with the common problem of the common man. There is no idealism, no superhuman in counter to the heroic character. कि यहाँ पे कोई सुपर ह्यूमन या कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट नहीं आते इसके अंदर। आप देखें हेडा गैब्रियल के अंदर कितने सुपर नेचुरल एलिमेंट आए हैं, आप देखें गैलीलियो गैलीली के अंदर कितने सुपर नेचुरल एलिमेंट आए हैं, कम होंगे, ऐसी चीजें नहीं होती। सिंबोलिज्म यूज होती है लेकिन ऐसी चीजें नहीं जैसे वो फेट और डेस्टिनी और ये। देयर इज नो फैंटेसी एंड नो सेंटिमेंटलिज्म। मॉडर्न ड्रामा इज नॉट अबाउट द मैन इनकाउंटर विद मोर देन मैन, यानी इंसान का इंसान के साथ कोई ताल्लुक नहीं यहाँ दिखाया जाता, लेकिन सोसाइटी का दिखाया जाता है। पूरी इंसान तो सोसाइटी का हिस्सा है ना। यू आर सोशल एनिमल, यू एंड मी आर सोशल एनिमल, वी कांट लिव विदाउट सोसाइटी, वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। इवन आई हैव टोल्ड यू लैंग्वेज इज आल्सो अ सोशल, जबान सोशल है। हम लैंग्वेज को बड़ा डीपली स्टडी करते हैं, हम लिंग्विस्टिक के जो टीचर हैं या बीइंग अ लिंग्विस्ट आई नो कि इंसान की कोई जुबान है ही नहीं। आप जरा गौर से सोचें, जब आप पैदा हुए थे तो आपको कौन सी लैंग्वेज आती थी? आप रो सकते थे बस। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको किसी ने बताया कि ये तुम्हारा चचा है, ये तुम्हारा मामू, हाँ ऐसी शक्ल हो तो वो चचा होता है, ऐसी शक्ल हो तो वो मामू होता है। ऐसा अगर कोई बुक जैसी कोई चीज हो तो उसे बुक कहते हैं, ठीक है जी। मोबाइल जैसी कोई चीज हो तो मोबाइल कहते हैं। हो सकता है किसी और लैंग्वेज में बुक उसे कुछ और कहते हो। अब डॉग है, इंग्लिश में उसे डॉग कहते हैं, फिर कहीं उसे कुत्ता कहा जाता है। अब मंकी है, उसे हम बंदर कहते हैं, इंग्लिश में उसे मंकी कहा जाता है। अब उसका नाम पता नहीं कि उसको पता ही नहीं है मेरा नाम मंकी है। तो इसका मतलब यह है कि लैंग्वेज कोई भी नहीं है। लैंग्वेज हमने क्या अपने सोशल नीड के लिए हमारे लोगों ने बनाई और लोगों ने हमें दे दी। जो मैं आपसे बात कर रहा हूं
बहुत सारे लोगों को, अगर तो एक ही जबान होती तो मैं अगर बात कर रहा हूं तो बहुत सारे लोगों को समझ आती। मेरे कुछ स्टूडेंट अफ्रीका से हैं, तो जब वो मैं लेक्चर देता हूं तो वो मुझे यूट्यूब पे कमेंट भी करते रहते हैं और इवन के मुझे कॉल करते हैं, सर कि हमें लैंग्वेज उर्दू समझ नहीं आती। तो मैं कहता हूँ ये सोशल नीड है, ये हमारी कोई एक इंसानों की एक लैंग्वेज नहीं है, या हाँ साइनिंग की लैंग्वेज हो सकती है। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। सो द सोसाइटी, इंसान का रिलेशन जो है, लोगों ने, चूंकि लोग मॉडर्न हो गए, सेंसिबल हो गए, उन्हें पता चल गया सब कुछ तो सोसाइटी होती है। सोसाइटी मीनिंग जो है सोसाइटी गिवन होते हैं। सोसाइटी बाउंड जो है, इंसान जो है वो भी सोसाइटी बाउंड है, सोसाइटी के अलावा वो कुछ नहीं है। द कैरेक्टर्स आर कॉमन मेन एंड वुमेन्स एंड द इशू इज एग्जिस्टेंशियल्स आर सर्वाइवल। Unlike Greek tragedy, there are no villains in the modern drama. The role of the flirt in the form of the play or the form of the Sphinx as the Oedipus Rex. Even Shakespeare's drama is based on the assumptions that some peoples are wicked in the world. They disturb the order and balance of the life. But modern drama neither praise nor blame. मॉडर्न ड्रामा आपको वो रीडर के ऊपर छोड़ देता है, भाई खुद ही आप इंटरप्रेट करते रहें। वो इस तरह की सिचुएशन में आपके सामने ला के खड़ा कर देगा आपको कि यू हैव टू डिसाइड। आज मैंने आपको एक वीडियो सेंड की है, उसमें मैंने कहा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट दो रस्तों की बात करता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि मैं जंगल में जा रहा था, दो रास्ते थे, एक रास्ता बहुत अच्छा था, एक ऐसा था कि जिससे मुझे चलता था जिस पे कोई नहीं चला। तो मैंने जिस पे देखा कि कोई नहीं चला, मैंने वो रास्ते को अख्तियार कर लिया। जब मैंने अडॉप्ट किया, लोगों ने कहा ये रास्ता ठीक नहीं है, और मैं भी जब मिड में पहुंचा तो मैंने सोचा पहले वाला शायद बेहतर था। इंसान जो है इस टसल में रहता है कि शायद वो पहले वाला ठीक था, ये ठीक नहीं है। ये है मॉडर्न फिनोमिना, ये है मॉडर्न डायलेमा, ये है टू बी और नॉट टू बी की सिचुएशन, जिसको शेक्सपियर ने हैमलेट के अंदर कहा, टू बी और नॉट टू बी, दिस इज अ क्वेश्चन, इस रेनेसेंस प्रॉब्लम, मॉडर्न मैन की प्रॉब्लम। Here the villain is a society and more specifically, आप देखें गौर से वही बात जो मैंने आपसे की है, the social system. The drama is not based on any presumptions about the man with the practical situations such as poverty, exploitations, class difference. यानी ये सारी मॉडर्न प्रॉब्लम है, गौर से इनको माइंड में बिठा लें, ये हमने डिस्कस करनी है। It deal with the practical situations such as poverty, exploitations, difference, education, capitalism, materialism, war, etc. However, quite a sizable portion of the drama is ideological also. Shaw, Bernard Shaw and Miller are committed writer. ये बड़े committed writer थे, ये अपनी ideology बताते थे। कैसे? They aim to bring about the socialistic revolution. ये socialistic revolution लाना चाहते थे। Modern drama does not distinguish between the comedy, tragedy, farce and farce का मतलब भी comedy होता है, and history. Since life itself is indivisible, लाइफ जो है वो एक यूनिटी की शक्ल में होती है। इट इज सिमल्टेनियसली अ ट्रेजेडी एंड फॉर कॉमेडी। यानी इंसान की लाइफ के अंदर ट्रेजेडी भी होती है, कॉमेडी भी होती है, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी डे है, कभी नाइट है, कभी गुड है, कभी बैड। आप देखें गैलीलियो को, अगर हम ये करते हैं, गैलीलियो बहुत अजीम आदमी था, गैलीलियो जो है वो कभी किसी के सामने नहीं जो, लेकिन अगर हम उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो हमें पता चलता है कि जब उसको इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए तो वो डर गया। हम मजीद अगर थोड़ा सा आगे जाते हैं, उसको और एक्सप्लोर करते हैं, हमें ये भी पता चलता है कि उसने पैसों के लिए, उसे पैसों की जरूरत थी, उसने किसी की बनाई हुई चीज अपना नाम लगा के बेच दी। व्हाट इज दिस? इंसान के अंदर गुड बैड, इंसान मिक्सचर है गुड और बैड का। जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो सबसे पहला तो ये आपको पता चलता है कि इंसान इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड। बोथ सेल्फ्स आर गुड एंड बैड सेल्फ्स आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, दे आर पार्ट ऑफ, यू कांट डिनाई। इंसान है, उसके अंदर बहुत सारे पैशन है, वो जेलस भी होता है, वो रश्क भी करता है, वो धोखे भी देता है, वो गुड भी है, वो अच्छा भी है, और डिफरेंट सिचुएशन में कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से वो हर किसी के साथ अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं। ही इज अ ब्लेंड ऑफ गुड एंड बैड एंड ही हैज टू बी बिकॉज ही इज अ ह्यूमन बीइंग। और ये जो इम्परफेक्शन है, इससे परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे स्टोइक कहते हैं, स्टोइक फिलोसोफर जो हैं वो कहते थे कि इंसान को ऐसी चीजों पे परेशान होना चाहिए
जो उसके कंट्रोल में है। जो उसके कंट्रोल में नहीं है उससे उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। आप बाहर गए हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं, आपने 50 मिनट घंटा वेट किया, वो नहीं आई, अब आप परेशान होना यूजलेस है, क्योंकि परेशान उस पे हुआ जाता है जो आपके बस में था, ये आपके बस में नहीं था। सो देयर आर टू काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू कंट्रोल एंड देयर आर थिंग्स दैट यू कैंट कंट्रोल। यू आर लेट, you can't control. You are outside and suddenly raining started and you are perplexed and worried. It is useless because it's not in your control. The thing is in your control: your passion, your feeling, your hard work, your intellect. You can develop it. इन चीजों को आप डेवलप कर सकते, कंसंट्रेशन को। आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं आप ये भी नहीं कंट्रोल कर सकते। तो दैट इज ऑल। यू हैव टू थिंक व्हाट यू कैन डू। It deal with the practical situations such as poverty, exploitation, ये हमने देख लिया। Modern drama does not distinguish between the comedy, tragedy, farce, history। नीचे आ जाए। Modern drama is a drama of revolt। आपको modern drama जो है वो एक revolt मिलेगी। ये करेक्टर होगा तो उसका दिल नहीं लगेगा। नौजवान आप देखेंगे तो वो कहेंगे मोनोटोनस लाइफ है, हमारा दिल नहीं लगता। बूढ़े कहेंगे कि हम लोग जो है वो सिमुलेट नहीं कर सकते यंगर जनरेशन के साथ। दोनों के प्रॉब्लम जो है आपको नजर आएंगे। मॉडर्न ड्रामा इज अ ड्रामा ऑफ रिवोल्ट, इज अ ड्रामा ऑफ एंग्री यंग मैन एंड एंग्री ओल्ड मैन। द यंग मैन कंप्लेन, द यंग कंप्लेन्स द लाइफ हैज बिकम मोनोटोनस एंड नथिंग हैज चेंज्ड। द ओल्ड कंप्लेन दैट एवरीथिंग हैज चेंज्ड। दिस समटाइम लीड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द जनरेशन गैप। और ये जनरेशन गैप को जन्म देता है। ये आप मॉडर्न ड्रामा में डिस्कस करेंगे। ये मॉडर्न साइकोलॉजी को जब उन्होंने स्टडी किया तो ये चीजें उभर के बाहर आई हैं और वो इनको डिस्कस करते हैं। दिस समटाइम लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ जनरेशन गैप। मॉडर्न ड्रामा थ्रोज लाइट द सोशल रिवॉर्ड्स, जेंडर रिवॉर्ड्स एंड रिलीजियस रिवॉर्ड। Modern drama emphasizes the role of the family, which is the basic unit of society, and family is held together by women। ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि मॉडर्न ड्रामा के अंदर फैमिली डिस्कस होगी। फैमिली में जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो फीमेल का है, वो हाउस होल्ड के काम करती है, वो घर को मैनेज करती है, हाउस वाइफ होती है। तो उसके साथ जो प्रॉब्लम रिलेटेड हैं वो जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है वो डिस्कस होगी। आगे आ जाए 5वें में। The other important thing that the modern drama largely takes a woman as a main subject। और एक और चीज है कि औरत, क्योंकि फेमिनिज्म जो है फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर जो है फेमिनिज्म की वो चल रही है, तो उसमें फीमेल के जो करेक्टर है उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के मॉडर्न ड्रामा में बयान किया जाएगा। 6 पॉइंट पे आ जाए। इन अ वे मॉडर्न ड्रामा बिलीव्स इन अ टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द कन्वेंशंस, द एंटी अथॉरिटी। मॉडर्न ड्रामा अथॉरिटी को, क्लास को, एक वन अथॉरिटी को क्वेश्चन करेगा। जैसे अगर घर में फादर है तो वो फादर डोमिनेट कर रहा है तो उस अथॉरिटी को चैलेंज करेगा। मौलवी की अथॉरिटी को चैलेंज करेगा, चर्च की, पार्सन की अथॉरिटी को चैलेंज करेगा। एंटी रोमांस होगा, एंटी वार होगा, एंटी लव होगा। मॉडर्न ड्रामा इज लार्जली साइंटिफिक। फ्राइड एंड मार्क्स की जो थीरीज हैं वो आपको बड़ी डोमिनेट नजर आएंगी। डिस्कस करते हुए राइटर जो हैं उनको नजर आएंगे। 8वें पे आ जाए। मॉडर्न ड्रामेटिस्ट हैव कम टू बिलीव दैट नो ड्रामास आर नो मोर मेयर एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑन द स्टेज। प्ले आर नाउ पब्लिश्ड ऑन द लार्ज स्केल। दे आर मोर रीड देन सी ऑन द स्टेज। अब लोगों को ये पता चल गया, जैसे आप उमैरा अहमद की जो अगर नावल हैं तो वो सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं। फीमेल जो पहले पढ़ लेती हैं उनको। और मैं अक्सर कभी पूछता हूँ स्टूडेंट से, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आपने किसको पढ़ा हुआ, तो वो मुझे बताती हैं मोस्टली फीमेल के हमने उमैरा अहमद के बहुत सारे जो नावल हैं उनको स्टडी किया। तो वो राइटर भी आजकल जानते हैं कि हमें लोग ज़्यादा पढ़ते भी हैं लिटरेचर को, तो ये स्टेजिंग की बजाय लोग ज़्यादा आजकल इनको रीड भी करते हैं, तो फिर वो उस हाथ से लिखते हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं। Ibsen changed the medium, 9th में आ गया, 9th पॉइंट पे। Ibsen changed the medium of drama, also he used prose as a language of tragedy. Early tragedy was written in verse, poetry is a language of motion, prose is a language of the reasons. Ibsen made dramas a serious analytical detached study of the human situation, so he wrote his drama in a prose। वो अपना ड्रामा प्रोज में लिखता है। जैसे सर फ्रांसिस बेकन बात करता है
इंडक्टिव मेथड देता है आपको। सर फ्रांसिस बेकर क्या कहता है? स्टडी सर्व्स डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। इट इज अ स्ट्रेंज डिजायर टू सीक पावर एंड लूज लिबर्टी। वह कहता है कि when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. Uneasy lies on the head of those who wear its crown. And again it's a strain to seek power and lose liberty. तो इस तरह की बातें जो हैं वो रीजन बेस और बड़ी रैशनल बातें किसमें की जाती हैं? प्रोज में। In the end, classical age drama served the purpose of the pulpits. The drama in the time of Sophocles was a religion drama. It reinforced the religious belief of the peoples. It was presented like the rituals in temples. The theatre was a temple, a playwright was a priest. It was possible because of the classical drama belonged to the religious society, where people have the same beliefs and thoughts in the similar way. It is a homogeneous society, but in the disintegrated society, everyone has his own belief and his own idea. अब वो कहता है जी पहले ड्रामा क्या था? ये ऐसे प्रे किया जाता था किसी मंदिर में, किसी चर्च के अंदर, कि एक प्ले जो है वो परफॉर्म हो रहा है और उसके जो करैक्टर है जो उसका वो ऐसे थे कि जैसे वो कोई प्रीस्ट है, तो इस तरह वो उससे शो करवाया जाता। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग बदल गए, साइकोलॉजी बदल गई, लोग जो डेवलप हो गए, हर इंसान की अलग सोच, तो फिर उसके लिहाज से फिर डील करना पड़ा। टेक्निकली लास्ट पे आ गया हूँ। टेक्निकली मॉडर्न ड्रामा इज आल्सो वेरी इनोवेटिव। इनोवेटिव होता है मॉडर्न, जदीद। देयर इज अ वेरी एक्सटेंसिव यूज ऑफ द सिंबलिज्म इन मॉडर्न ड्रामा। आपको अगर ड्रामा को समझना है तो आपको स्टाइलिस्टिक का पता हो, स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस का पता हो, लिटरेरी क्रिटिसिज्म बड़ा अच्छा आता हो, तो फिर आपको उसको समझ सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनको उसको वॉच कर सकते हैं अच्छी तरह से। सिंबलिज्म बड़ी यूज होती है। मॉडर्न ड्रामा आल्सो हैज मेड यूज ऑफ ऑल द अवेलेबल डिवाइसेस ऑफ द कम्युनिकेशन, सच एज इम्प्रेशनिज्म। बहुत ज्यादा इंप्रेशन दिया जाएगा, एग्जैजरेट करके इंप्रेशन, इस तरह के एक्सप्रेशनिज्म का डिस्टॉर्टेड फॉर्म में इस तरह एक्सप्रेस किया जाएगा, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा। ये दोनों जो इज़म है, ये दोनों जो पेंटिंग की मूवमेंट्स थी, surrealisms, naturalism, realisms, nightmares. It also uses the established dramatic techniques of puppetries, colonings, soliloquies, and horseplay. It uses the latest stage techniques and takes the benefit of device, light, and sound. There is even use of the mask. Modern drama has also been influenced by the films and TV techniques. अच्छा, soliloquy का मतलब होता है, लिख लें, soliloquy मीन कि अगर आप बैठे हैं तो करेक्टर अपने आप से बातें कर रहा है। मिसाल के तौर पर जब अगर हम हैमलेट को देखें तो उसमें शेक्सपियर ने soliloquy का इस्तेमाल किया है। soliloquy मीन व्हेन करेक्टर इज सिटिंग अलोन, ही इज थिंकिंग, कंटेम्पलेटिंग दैट ही विल डू। वो अपनी इंटेंशन शो करता है कि वो कैसा है। आप अगर ड्रामा को वॉच कर रहे हो तो सब टाइम एक करेक्टर बैठ के अपना ख्याल सोचने लग जाता है। मिसाल के तौर पर वो सोचता है कि कल मैं ये काम करूँगा, और वो ऐसे अपने आप से बातें करता है। वो होती है soliloquy। Hope you've learned about modern drama. You have learned scene 5 and I've given you scene 6 as a homework. Tomorrow we'll come up with another assignment and see. Have a nice time.